سرور کائنات، سردار کائنات، فخر کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نظم کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اما آمنہ بلال مدینہ کے تاجدار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس معطر منور طاہر مقدام ہدیہ عقیدت درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ مجید نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ ملک میں سے ایک آیت مبارکہ کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کر کے شرف حاصل کیا ہے. دعا کرو اللہ تعالی امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفوں کے تصدق اور تبرک سے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حقانیت کا، سچ اور صداقت کا پیکر بننے کی توفیق نصیب فرمائے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا آنے والے. ہر موڑ پر چوکی ہے، ہر نکر پر پہرے دار کھڑے ہوئے اور ہر نکر پر وہ ہماری تلاشی لیں گے، ہر چوراہے پر ہماری تلاشی لیں گے کہ دل کے اندر حب رسول کی شمع جلا کے آیا یا بجا کے آیا. جس علاقے پر ہم اس انداز سے فیل ہو گئے کہ جنہوں نے ہماری چیکنگ کرنی ہے بارگاہ رسالت میں جانے سے پہلے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میرے دل میں تو حب رسول کی شمع بجھی ہوئی ہے، اس دل میں حب رسول کی شمع بجھی ہوئی ہے، تو پھر تو ہم کسی قابل نہیں ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تیرے دل کی شمع حب رسول سے منور ہے، تو پھر ادھر بھی کامیابی ہے اور ادھر بھی کامیابی ہے، ادھر بھی کامیابی ہے اور ادھر بھی کامیابی ہے. کسی شمع کو اپنے دل کے اندر منور کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے محبوب کا غلام بن کر کون آیا ہے. یہاں پر تو سارے غلامی کے دعوے کرتے ہیں، یہاں پر تو سارے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ تو بعد از موت پتہ چلے گا کہ غلام رسول کون تھا، عاشق رسول کون تھا. جس طرح حضرت امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے اپنے خلاف کھڑے ہونے والوں کو، آپ فرماتے تھے بھائی تو مجھے کہتے ہو کہ احمد بن حنبل غلط ہے، بیننا و بینکم الجنائز. آپ فرماتے تھے تمہارے اور میرے درمیان ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے. ہمارے کیا کریں گے جی؟ جنازے فیصلہ کر دیں گے. حق پر کون تھا اور حق کون تھا، حق کے لیے مار کس نے کھائی اور حق مارا کس نے، یہ جنازے بتا دیں گے. تو جو حضرت امام احمد بن حنبل کو مارنے والے تھے ان کے جنازے میں چوتھے سے پانچواں بندہ نہیں تھا، اور جو امام احمد بن حنبل تھے آپ کے جنازے میں جہاں نگاہ جاتی تھی مخلوق کی مخلوق نظر آتی تھی، مخلوق کی مخلوق نظر آتی تھی. ایک تو کامیابی یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم تھا جیتا کون، اور ایک تو کامیابی یہ کہ آج ہم صدیوں بعد امام احمد بن حنبل کا تذکرہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ تو چھوٹی کامیابی نہیں ہے. کوئی کسی کا ذکر نہیں کرتا، سال بعد تو بندہ باپ کو بھی بھول جاتا ہے، ماں کو بھی بھول جاتا ہے. سالانہ ختم ہو تو پھر کہیں ماں بہن یاد کروا دے تو کروا دے، اور میرے آج تو ختم نہیں تمہارا، وہ بھی جھپٹ کے پڑتا آج کی نہ ختم آ گیا جی. اور پھر بہن دبی لے جیسے کہتی آج پتہ آج کے دن ابا جی کا وصال ہوا تھا، آج کے دن ابا جی بہت ہوئے تھے. وہ بھی کسی کے یاد کرانے سے ابا جی یاد آتے ہیں. وہ رسول اللہ کا غلام کیسا صادق اور امین اور پکا عاشق رسول ہے. ہمیں تو کسی نے نہیں یاد کروایا، ممبر پر پھر بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں واہ واہ امام احمد بن حنبل، آپ کی بھی واہ واہ کہ جب آپ نے رسول اللہ کے دین پر پہرا دیا، پہرا دیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور آج ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. جہاں ماں باپ یاد نہ رہے اور رسول اللہ کے غلام یاد آ جائیں تو پھر بندے کو فیصلہ کر لینا چاہیے زندگی وہی ہو جو رسول اللہ کے غلاموں کی ہے.
17 फरवरी तक आप नारा याद करें। हाँ इंशाल्लाह हमने ये आज का मौजूद का इंतखाब इसी वजह से कि 17 फरवरी मर तो हमने वैसे ही जाना है, मर तो हमने वैसे ही जाना है, चले जाना है, लेकिन अच्छा नहीं है कि हम 17 फरवरी को मर जाए रसूलुल्लाह के नाम पर। या रसूलुल्लाह वो तो इतने ढीठ किस्म के लोग थे, एक सफेद ही निकाल सकते थे, हम अपनी रूहें निकाल कर आपके कदमों में लेके आ गए, हम अपना सब कुछ लेकर आ गए। या रसूलुल्लाह जिंदगी का हमने क्या करना, ये जिंदगी के बाद आपके जनाब इज्जत पे पैरा भी ना हो, आपका नाम लेवा लोगों पर फिर पर्चे काटे जाए। फैसलाबाद की बात है, एक मौलवी साहब ने जनाब कादियानी को काफिर कहा और थाने वालों ने उसके खिलाफ पर्चा काट दिया, थाने वालों ने। और भाई किसके लिए पाकिस्तान बना है? तो 17 फरवरी से पहले ये तैयारी कर लो कि या फिर मर जाएंगे या फिर मार के आएंगे इंशाअल्लाह। ये फिर बता के आएंगे कि रसूलुल्लाह के गुलाम मनाशिक के सर मस्ता मजदार मौजूद देशम इल्मुद्दीन जब जाने लगे ना सूली की तरफ, ये है मौत, जिस मौत की रजा ने फरमाया को मासरो अमला, मैं देखना चाहता हूँ तुम कौन सी नेकी लेकर आए हो, कौन सा अच्छा अमल लेकर आए हो। वो इल्मुद्दीन जो देख के कुरान भी न पढ़ा हुआ था जाने लगा दाल की तरफ, फांसी की तरफ। तो बड़े बड़े लोगों ने कहा एक मरतबा पलट कर तो देख, आगे रस्सी है, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी नहीं बचेगी, तुम्हें ये मार देंगे। तो आपने जाते जाते कहा मनाशिक सर मस्तम अजदार बयंदेशम, जो परवाने जाम आजम अजनार बयंदेशम। और फांसी से डराने वालों, हम तो आंखों में छलांग लगा देते हैं, ये तो फिर भी रस्सी है। तुमने हजरत मुस्लिम खुलानी को नहीं पढ़ा? हजरत नबी में सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इमाम मुस्लिम खुलानी को आपने नहीं पढ़ा? सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर है और असद वंशी के मुकाबले में खड़े हो गए, जी मैं नबी हूँ। आपने कहा कुत्ता बकवास करता है, तुम नबी है? तू तो कुत्ता हो सकता है और कुत्ते से भी बदतर हो सकता है। नबी मेरे इमामुल अंबिया है, नबी मेरे इमामुल अंबिया और खातमुल अंबिया है। उसने कहा इसको आग में फेंक दो, हाथ बांधने लगे इमाम मुस्लिम खुलानी के। आपने फरमाया हुए हाथ उनके बांधे जाते जिन्होंने जुर्म किया हो, मैं मुजरिम थोड़ा रहूं, आग में डाल के दे। जिस हजरत इब्राहिम को आग में नहीं छुआ था, आज मुस्लिम खुलानी को भी आग में छुएगी। और तुम्हें ये बता के कहूंगा, जो रसूलुल्लाह के आशिक के साथे कोड़ते हैं, ना वो नार से डरते हैं ना वो डार से डरते हैं। बस डर एक ही बात का होता है कि महबूब नाराज ना हो जाए, कि यार नाराज ना हो जाए। आपको फिर आग में फेंक दिया गया। जब आग में फेंका गया तो फिर उन्होंने कहा ये तो इसको कुछ भी निकाला जाए इसको बाहर। जब बाहर है तो उसने कहा यार इसके खिलाफ कोई फैसला करो, इसको मार दिया जाए। उन्होंने कहा इसको मारो ना, इसको मदीना वापस भेज दो। जब मदीने पहुंचे तो सामने सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, सैयदना फारूक आज़म खड़े हो गए। आपने फरमाया उमर पाक ने, आपने कहा वो जड़ा तो नहीं जिसने मेरे महबूब की इज्जत में पहरा दिया है, वो जड़ा तो नहीं है? उसने कहा हाँ हाँ मैं वही हूँ। तो जनाब साइड पे बैठने लगे। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया नहीं, आज सिद्दीक़ अकबर की जगह पे तू बैठेगा। जो रसूलुल्लाह की इज्जत में पहरा देकर आए फिर उसका मुकाम ये होता है। अभी बिन ज़ैद को आग में डाला गया, आपके जनाब एक जिस्म का टुकड़ा किया गया, कहा मुझे नबी मान ले। आपने फरमाया तू क्या बोलता है, मैंने तो तेरी बकवास सुनी नहीं। उसने कहा तू गवाही देता अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो फिर अभी फिर ज़ैद ने कहा क्या पूछता है, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला, से औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। उसने कहा मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती? उसने कहा हमें पढ़ाया यही गया कि जब भी बात सुनी है ना इल्मा में फसाद होना ना लम्या पहने बात होना, तो याद ही गल। बस हमें तो ये बताया गया इधर से भी हुजूर की बात हो, इधर से भी हुजूर की बात हो, सामने से भी हुजूर की बात हो और पीछे से भी हुजूर की बात हो, और जब सामने तीर हो फिर भी हुजूर की बात हो, और फांसी का फंदा हो, मुमताज कादरी जा रहा हो और उसको ये लगे कि मेरा बेटा दिखाया जाए, मेरी माँ दिखाई जाए, मेरी बीवी दिखाई जाए। वो सिर्फ एक 4 सेकंड के लिए तूने रस्सा नहीं खींचना, एक मरतबा महबूब को देख लेने दो जिसने आना है मेरे लिए। ऐसे जब सरकार तशरीफ लेके आए तो मुमताज कादरी का जब मेरे मुंह से निकले लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो फिर तख्ता खेल देना, समझ लेना महबूब तशरीफ लेके आ गए हैं। ऐसे फिर आपने लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
फरवरी बन गया बहाना, 17 फरवरी बन गया बहाना अल्लाह के हुजूर पेश होने का, अल्लाह के हुजूर जाने का। मर तो हमने वैसे ही जाना है। इमाम हुसैन फरमाया करते थे जब जिंदगी बनी मरने के लिए है तो फिर तखीर किस बात की, फिर तखीर किस बात की। आज नहीं तो कल जाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था भी थोड़ी जिंदगी और दे दो, तो हजरत इब्राहीम ने कहा हजरत कितनी लेना चाहते हैं? हाँ, उन्होंने कहा जी जितनी आप अल्लाह से लेकर आए। उन्होंने कहा ये बकरी का आप जितने बाल उतार लें उतनी आपकी जिंदगी होगी। आपने फरमाया इसके बाद कहा फिर मौत है, फिर भी 40 साल के बाद फिर भी, 80 साल के बाद फिर भी, जवान है तो फिर भी, बूढ़ा है तो फिर भी, मर्द है तो फिर भी, औरत है तो फिर भी मरते जाना है। पर जस ताए जे यार दे नाते मरिए, जस ताए जे यार दे नाते मरिए तो फिर मरण का मुल पै जाना है, फिर मरण का मुल पैना है। कोई भी याद ना करे जो तो रसूलुल्लाह दे यारा दी कचहरी लगनी है फिर उस मरण वाले का नाम लिया जाना है। यार बड़े बड़े मौलवी मर गया, बड़े बड़े पीर मर गया, बड़े बड़े फकीर मर गया, पर खादिम रिजवी वर्गा आज तक कोई नहीं मरया। खादिम रिजवी के आज तक कोई नहीं मरया। फिर सदियां बाद ही वेखेंगे देखो जनाजे आन एहो जी फिर मौत आन कि बंदा हंसता हंसता चला जाए। एवरी मौत लो मारते हुए भी जाना है। अय्युकुम आसन अमला, और अब देखना चाहता है तुम में अच्छाई करके कौन आया है, तुम में अच्छाई करके कौन आया है। एक शख्स सूद का कारोबार करता था, ये अबू दाऊद शरीफ के हदीस पाक है, मुस्नद हदीस पाक है। उसने सूद का कारोबार किया हुआ था, किसी ने उसको समझाया भाई ये तो बड़ी लानत है, हया कर। उसने कहा अच्छा फिर मुझे कलमा पढ़ाओ हुजूर का। कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद साहबा क्या हुए थे जंग पर, तो उसने कहा जी फुला की तरह है, फुला की तरह है, फुला की तरह है। उन्होंने कहा जी सारे चले गए जंग पे। उन्होंने कहा जंग पे क्या होता है? कहा जिन्होंने कल मरना है वो आज मर जाएंगे, जिन्होंने कल मरना है वो आज मर जाएंगे। उसने कहा फिर मुझे वो जंग का वो मैदान दिखाया जाए। ना पहले कोई नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात, सिर्फ कलमा पढ़ा है, बस सिर्फ कलमा पढ़ा है, सिर्फ कलमा पढ़ा है। जनाब अल्लाह वो कारसाज मैदान में उतरा तो सहाबा ने कहा अभी आप ना अब इब्तिदा है आपकी। तो उसने कहा नहीं यार, जो चस मैदान में आती है वो घर में नहीं आती, जो चस मैदान लगाने में आती है वो घर बैठने में नहीं आती। वो हजरत जनाब अल्लाह चले गए, तलवार लेकर मैदान में उतरे तो शहीद हो गए। क्या हुआ जी? अब जिनके पास नमाजें थी उनका इस्तेमाल भी रसूलुल्लाह कर रहे थे, और जिनके पास एक नमाज नहीं थी फकत ये इश्क था, फकत ये इश्क था, रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी, उनका भी इस्तेमाल रसूलुल्लाह कर रहे थे। फिर किसी ने ये इतराज नहीं किया यार रसूलुल्लाह इसने तो एक नमाज नहीं पढ़ी, कुरान की तिलावत नहीं की, इसका तो हज नहीं है, ज़कात नहीं है। जब कलमा पढ़ लिया तो फिर सब कुछ आ गया। जब कलमा पढ़ लिया तो हर तो वैसे ही जाना है। वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा ऐनमा तकूनू वलो कुंतुम, ये कुरान का फैसला है। भाई किधर जा रहे हो तुम, किधर तुम छुप रहे हो? वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, जिस मौत को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है ये तो बड़े बड़े बंगलों से बाहर निकाल देती है, बड़े बड़े मोहल्लात से बाहर निकाल लेती है, बड़े बड़े चौधरी और पीरों को बाहर निकाल लेती है। बड़े बड़े वजीरों को, हमान को नहीं देखा, कारून को नहीं देखा, फिरौन को नहीं देखा, नमरूद को नहीं देखा। अपने इम्मा ये लोग भी कुरान कहता हूँ भाई अल्लाह तुम्हें बार बार नसीहतें करता है कि तुम बाद आ जाओ, बाद आ जाओ, बाद आ जाओ। बाद आने का मतलब ये है कि मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। मरने से पहले किसी के पास गारंटी है कि मैं 4 साल के बाद मरूंगा, किसी के पास गारंटी है मैं 10 साल के बाद मरूंगा। अब पता नहीं मैं पेपर से भी नहीं उतर सकता हूँ कि नहीं उतर सकता, ये तो रब जानता है, ये तो रब जानता है। जब मुझे पता ही नहीं मौत कब आनी है तो फिर उससे पहले पहले तैयारी करो, उससे पहले पहले तैयारी करो। और वो तैयारी यही है कि अपने आप को हुजूर के दर पे पेश कर दो, हुजूर के दर पे पेश कर दो। फिर उस मौत का मजा कुछ और होगा, उस मौत का मजा और होगा। वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कुरान कहता है तुम्हें बड़े बड़े मोहल्लात और पक्के पक्के मोहल्लात से भी मौत बाहर निकाल कर ले आएगी, अल्लाह के हुजूर पेश कर देगी। जब है ही जाना, जब है ही जाना। जिस तरह बड़े कहते सन अब जो है ही जनाब अल्लाह तुसी फलां दे घर रिश्ता करना, फिर बहाने ते ड्रामे किस गल दे, फिर ताने किस गल दे। जो तुहाडा ज़हन बन जो गया रिश्ता करना तो फिर ऐब किस गल दा, फिर तुझे ड्रामेबाजियां जो तो है तुझे रिश्ता करना तो फिर करो, जो तो है ही मरना तो फिर आज मरो। आज रसूलुल्लाह दे नाम ते मर जाओ, आज रसूलुल्लाह दे नाम ते वेख जाओ, आज रसूलुल्लाह दे नाम ते कट जाओ, सदियां बाद भी थोड़ा नाम ले जाना है,
सदियां बाद भी तुहाडा ना लिया जाना है। इल्मुद्दीन कौन जानता सी? अज ना लिया गया कि नहीं लिया गया जी? ते कल साडा भी इंज ना लिया जाना है, कल साडा भी इंज ही ना लिया जाना है। अगर हुजूर दे नाम ते मर गए ते कट गए, क्योंकि साडा मरना भी सवाब है, साडा मारना भी सवाब है, साडा मरना भी सवाब है और साडा मारना भी। क्योंकि रब ने फरमाया जेड़ा काफिर है रब की बारगाह में कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन मोमिन हर वेले रब की बारगाह में उम्मीद रखता है, हर वेले दुआ करता है या अल्लाह मेरी शहादत दी मौत अता फरमा। क्योंकि रसूलुल्लाह को पूछा गया ना महबूब तुम्हारी की ख्वाहिश है? आपने फरमाया मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की बारगाह शहीद हो जाऊं। की हो जावा जी? फिर मेरी जिंदगी दी जाए, फिर शहीद हो जावा, फिर जिंदगी दी जाए, फिर शहीद हो जावा। तेरे ते मेरे नबी आरज़ू है करन ते असी 4 दिन जी लैण दे मौलवी साहब केड़ी गल्लां शुरू कर दियां तुसी? हुणे मारना चाहते हो तुसी? हुणे मारना चाहते हो? असीं पुत्रा दा ब्याह नहीं वेख्या, असीं जनाब जी बैठे असीं पुत्रा दा ब्याह नहीं कीता, अभी से आपने मरने और मारने की बातें शुरू कर दी हैं। बाबा तेरे पास गारंटी है कि तूने पोते के ब्याह तक जिंदा रहना है? फिर तो जी, अगर नहीं जिंदगी तो फिर आज ले इनकी बना, आज ले इनकी बना और आज मदद मांग इनसे, फिर न माने ये घर कयामत में मान गया। काफिर तो हमारे सर पर मंडला रहे हैं, वो तमाशा देखना चाहते हैं मुस्लिमों का। मुसलमानों को देखो जी ये कैसे आपस में दूसरे के साथ दस्तों के रिबा होते हैं, और हमें उनको बताना है हम जात के लिए दस्तों के रिबा नहीं होते। जब भी हम मैदान लगाते हैं तो मोहम्मद अरबी के लिए लगाते हैं, रसूलुल्लाह की जात के लिए लगाते हैं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए लगाते हैं। जब है ही मरना, जब 17 फरवरी तक तैयारी कर लो, मौत उठे तो रुमाया नहीं जाना, लेकिन इस जज्बे नाल खड़े हो जाओ, इस जज्बे नाल खड़े हो जाओ कि या रसूलुल्लाह तुहाडे गुस्ताखां को असीं बदला लेना है, असीं बदला असीं सोना नहीं होना, असीं खामोश नहीं रहना होना। ये उन्होंने जिंदी जिस दी चाहने गुलामी करन, अमेरिका दी करन, बरतानिया दी करन, यूरोप दी हवावां दी करन, या रसूलुल्लाह सानू तुहाडे दर दी गुलामी मुबारक, सानू तुहाडे दर दी गुलामी मुबारक। यही सबक तुसी खुद याद रखना है 17 फरवरी तक, और अपनी नस्ल भी 17 फरवरी तक तैयार करना है कि यारो हो सकता है मैं 17 फरवरी निकल जावा तो कोई तीर की गोली लग जाए, कोई मेरे आके पत्थर बज जाए, मैं अल्लाह के हुजूर पेश हो जावा तो वो पत्थर फाड़ के मेरे मैयत वाले सराने रख दिया जे। जो फरिश्ते पूछण आ भाई की लेके आया तो मैं पत्थर खा दिया, और तो कुछ नहीं, रसूलुल्लाह के नाम से खा के आया, रसूलुल्लाह के नाम से खा के आया, और तो मेरे पल्ले कख नहीं। जेड़ी तुसीं नमाज़ां ते माण करदे हो, ये नमाज़ां जे रियाकारी बन गई तो मुंह ते मार दी जाएगी, रोजा रियाकारी बन गया तो मुंह ते मार दी जानी, हज ज़कात रियाकारी बन गई तो मुंह ते मार दी जानी है। ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत रियाकारी में भी हो गई, वो भी काबिल कबूल हो जानी, वो भी काबिल कबूल हो जानी है। आज फैसला करो, हर शाम तुसीं ये वेख, हक भी वेख लिया ते बातिल भी वेख लिया, तुसीं दोवां दा तुसीं मुआदरा कर लिया, ज्यादा मदद किना वाले आई तो ज्यादा रहमत किना ते नाज़िल होईयां, ज्यादा जनाब इनाम किना में मिले, ये सब कुछ तुसीं वेख लिया। हुण वेखण तो बाद इमा शाकिरा व इमा कफूरा, अल्लाह फरमा रहे हैं दोनों से 2 रास्ते दिखाते हैं, एक मदीने वाल जाता जे, एक गैरा वाले जाता जे। तो जेड़ा गैरा वाले जाता वो तो चाहते हैं असं फ्रांसीसी सफीर बाहर निकलना, फ्रांसीसी सफीर बाहर वो चाहते हैं, लेकिन जेड़ा रास्ता मदीने वाल जा रहा है वो कहते हैं पुत्रो आज नहीं तो कल कढ़ना पैना है। हाँ ये तुसीं ना समझा करो कि जनाब असीं सिर्फ मसीते पै के नारा ला लिया तो उन्होंने की फर्क पैंदा है। तुहाडी एक गल दी रिपोर्ट पहुंचदी ना, एक लम्हे दी रिपोर्ट पहुंचदी है, एक की सोचते ने, एक की करते ने, एक की चाहते ने। असीं ते चाहते हैं मन सब्बा नबीचन, मन सब्बा नबीचन, सब्बा नबीचन, सब्बा नबीचन, चाहते हैं ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? सब्बा नबीचन, सब्बा नबीचन, सब्बा नबीचन, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। इस बात पर कोई दूसरी बात नहीं है, खुद तो कर सकते हैं, इस बात से पीछे नहीं हट सकते। दूध पीना बच्चा भी सानू लियाना पे, असीं लै के आवांगे, लै के आवांगे। या रसूल अल्लाह ये असासा साडा
تو ملے بھی تھوڑی بارگاہ دی وجہ تو ہے، ملے بھی تھوڑی بارگاہ دی وجہ یا رسول اللہ دی عزت محفوظ ہوئی تو پھر ساڑھی عزت کس کھاتے دیا اسی کس کھاتے تھے جس نے ایک بزرگوں نے شادی کی نہ دے ہو اپنی بیوی کو روائے اللہ تعالیٰ نے بچہ دیتا اثر دی نماز بیوی کو قضا ہو گئی تے آپ نے فرمایا ہاں بھی نماز نہیں پڑھی تو اثر دی انہوں نے کہا بچے نے پیشاب کر دیتا اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکی تو انہوں نے ایک بچے کو پڑھیا اس طرح میں کہا یا اللہ واپس لے لے یا اللہ واپس لے لا جیڑا تیری عبادت ہے جو رکاوٹ کا سبب بن گیا اس اولاد کو کی کرنا ہے اسی جیڑی تیرے بار کے جیسا دی نماز رکا دے ابھی جو اولاد لینی جب نماز کا ٹائم ہوئے تو آخیا ابا جی اٹھو مسجد چلیے اما جی اٹھو آٹا چھاڑ دو برتن چھاڑ دو پہلے نماز پڑھو پہلے نماز پڑھو پہلے قرآن پڑھو اسی تو لینی او والی اولاد تے اسی نا ساواں کی کرنا ہے جیڑی رسول اللہ دے در تے قربان نہ ہون اسی جو ساواں لینی آ جیڑی ہر سال تے کہن من سبا نبی جن 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 رسول کی ایک ہی صدا رسول کی ایک ہی صدا آج لے ان کی بنا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا اللہ تعالیٰ